Friends, let's discuss stoichiometry. Stoichiometry is a branch of chemistry in which we study quantitative, very important, quantity, amount, quantitative relationship between the amounts of reactants and products. And we perform so many numerical calculations which are highly useful in solving various problems in chemistry. So while solving numerical problems using stoichiometry, we keep these points in mind. हम इन बातों का ध्यान रखते हैं. First, atom is the elementary particle which takes part in a chemical reaction. Atom is the elementary particle, smallest particle है, smallest particle, which takes part in a chemical reaction. Atom does not change its nature during any chemical reaction. Simply there is a rearrangement or reshuffling of atoms from one or more different types of matters, leading to formation of again one or more different types of substances. Very important. Number two, on this basis we can say during a reaction matter can neither be created nor destroyed. किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट्स है उसके बराबर ही प्रोडक्ट्स की अमाउंट बनती है. थर्ड, we also keep in mind the concept of equivalent weight. very important please. इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट भी हम यहां पर यूज करते हैं. इक्विवेलेंट वेट. Fourth and last one is we use the mole concept very frequently. यहां पर जब हम स्टोइकियोमेट्री में अलग-अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वहां पर क्या मोल कंसेप्ट का हम यूज करते हैं. And while making these calculations, another important term is the stoichiometric coefficients or stoichiometric constants. किसी भी balanced chemical reaction में, for example, what we have? Nitrogen reacts with hydrogen, producing ammonia. It is a very important reaction in chemistry, right? And it is a balanced chemical reaction. Here, nitrogen is one molecule, I'm telling you, one molecule, three molecule, two molecule. लेकिन एक मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल लेना संभव ही नहीं है. तो गैसेस के केस में यहां पर क्या है, कह सकते हैं कि ये इसका वन वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम, थ्री वॉल्यूम, टू वॉल्यूम. मतलब क्या इसका, अगर ये गैसियस रिएक्शन है तो, और बहुत कम रिएक्शंस होती हैं जिनमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैस फेज में होते हैं, बहुत कम रिएक्शंस हैं. तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका 1 लीटर है तो इसका 3 लीटर लगेगा रिएक्ट करने के लिए, इसके 2 लीटर बनेंगे हमेशा. ये बहुत मतलब है. 1 liter of nitrogen reacts with 3 liters of hydrogen, forming 2 liters of ammonia. But in general, here the number is 1, it is 1 mole, right? जो यहाँ पर 1 stoichiometric constant है वो 1 mole. The interpretation is 1 mole. Here the stoichiometric coefficient or constant is 3. It means 3 moles of hydrogen, and here it is 2. This is very important. कि किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, they are taken as number of moles of reactants and products.
So these are very important points we have to keep in mind while discussing the numericals based on stoichiometry. तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट the amount of calcium carbonate which reacts with aqueous HCl according to the reaction। तो क्या बोल रहा है भाई, ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, न्यूमेरिकल है आपका, ये न्यूमेरिकल, लेट्स से न्यूमेरिकल नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है यहाँ पर, और क्या ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, HCl का सॉल्यूशन है, aqueous का क्या है, ये पानी का सॉल्यूशन है, aqueous। व्हाट वी गेट That's the arrow, छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम क्लोराइड ये पानी में घुला हुआ है ऐसे, ठीक है, प्लस वाटर लिक्विड है यहाँ पर, ये प्लस CO2, ठीक है, ये गैस, ये बाहर निकल जाएगा आपका गैस के हाथ से, ये रिएक्शन आपकी, ठीक है। हमें यहाँ इससे क्या है, ओके, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। ये पूछ रहे हैं व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास कैलकुलेट करना है, क्या करेगा, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। भाई इसका हमने क्या लिया है, 25 ml लिया है, राइट, सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन कैसा है, 0.75 मोलर है, ये खास बात है HCl का ना, ठीक है। ये सी क्या है, मोलर, मोलैरिटी है, कैपिटल M है, ये मोलैरिटी HCl है सॉल्यूशन। तो कितना यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए जो 25 ml 0.75 मोलर HCl से रिएक्ट कर सकता है, या रिएक्ट करने के लिए काफी होगा, कितने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए प्लीज, जो भी आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो वो ग्राम में होंगे या उनका वॉल्यूम होगा, ठीक है, वेट होगा या वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम से भी फिर हम कई बार वेट में चले जाते हैं, या वहां पर क्या है, देखिए हम जब भी रिएक्टेंट्स लेते हैं वेट से या वॉल्यूम से लेते हैं, नंबर से नहीं ले सकते, मोल से नहीं ले सकते प्लीज, कि उसके लिए हमने क्या है, वी कैन नॉट काउंट फिजिकली नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिजिकली हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उनका वेट होगा, फिर हम क्या है, हम वेट को मोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, द्वारा फिर क्या मोल को वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, जो कैलकुलेशंस है। और इस तरह का जो मेथड को बोलते हैं हम मोल मेथड, क्या बोलते हैं भाई, मोल मेथड, कि रिएक्टेंट्स के अगर हमारे पास ग्राम है तो उसको हम पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, क्या निकलेगा, प्रोडक्ट के कितने मोल बने, फिर अगर वो ग्राम में पूछ रहा है तो मोल को द्वारा हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल थिंग जो मोल कंसेप्ट में आता है, इसलिए मोल कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले तो कितना वेट है यहाँ पर HCl का, कितना वेट है, 0.75 मोलर है ये प्लीज। तो पहले ग्राम में लेके जाइए इसको, HCl का जो मोलेक्युलर मास है वो क्या होता है, 36.5, राइट, ओके प्लीज। पहले ये देख लीजिए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा भाई, ये मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास ml लिखे मैंने, मॉलिक्यूलर मास वेरी इंपॉर्टेंट, वेट इन ग्राम। तो यहां से हमने वेट इन ग्राम तो निकालना है इसका HCl का, ठीक है, तो निकाल लो कितना वेट है ये, ओके प्लीज। वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 0.75 into 36.5, ओके। और ये जो ग्राम में वेट है ये 1 लीटर में है भाई, 1 लीटर में, लेकिन 25 ml डिवाइड बाय 1000 into 25, यहां से आएगा वेट इन ग्राम। दिस इज द वेट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1000 ml में है, लेकिन है हमारे पास 25 ml, तो ये आ गया वेट ऑफ HCl इन ग्राम। तो मैं इसका सीधा लिखता हूं भाई, वेट कितना है ये 0.9375, सॉरी 0.6844,
0.6844 ग्राम, यहाँ से गुणा करेंगे ये होता है 20। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए यहाँ पर, ये पूरा 100 होता है, इसका 100 ग्राम अगर हमारे पास है, ठीक है, इसका 100 ग्राम को पूरा रिएक्ट करने के लिए इसका कितना चाहिए, दैट इज ये होता है आपका 36.5 मींस जो मोलेकुलर मास है, सो ये कितना लगेगा यहाँ पर इनटू 36.5, ठीक है, 73 ग्राम हो जाएगा, 73 ग्राम। और क्या पूछ रहा है ये कि इतने ग्राम HCl है, सिर्फ 73 ग्राम HCl से कितना रिएक्ट करता है भाई, 100 ग्राम रिएक्ट करता है पूरा। ये कहां से आया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट इज वेरी मच क्लियर दैट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ओके, या क्या कह लीजिए 73 ग्राम of HCl will react with 100 gram of calcium carbonate, okay please। जो वेट है इसका, ये कैल्शियम HCl का कितना वेट है, लेट्स से वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो भी आएगा इक्वल टू 100 और 73 into 0.6844 पॉइंट, मैंने कल पहले आंसर देगा 0.9375 ग्राम, 0.9375 ग्राम ये वेट होगा इसका, 9375, ये 0.94 ग्राम के लिए सिंपल सी बात है। तो 25 ml जो आपका HCl है 0.75 मोलर, ठीक है, इसके साथ 0.94 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर ये प्लीज एक और रिएक्शन है, ये दूसरा, लेट्स सी। If 10 volumes of dihydrogen, reaction by 2H2O, 2H2 gas, O2 gas is equal to 2H2O गैस, वो वेपर्स ही बन रहे हैं नहीं, ठीक है, गैस। If 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen, अब देख लो इसका हमारे पास क्या है, 2 वॉल्यूम 2 लीटर, इसका 1 लीटर लगेगा, सीधा यहाँ पर ये 2 लीटर बने, सिंपल बात है यहाँ पर ना। फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट इज वेरी मच क्लियर दैट 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन will react with 1 liter of oxygen producing 2 liter of water vapors or water in the vapor phase, gas phase। अब पूछ क्या है भाई, if 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen, इसका 5 वॉल्यूम है, यहाँ पर 5 लीटर है, इसका 10 लीटर है भाई। How many volumes of water vapor could be produced? अब देखिए प्लीज, ये हमारे पास लिमिटिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन है, कि इसके अमाउंट यहाँ पर कम है। अगर ये हमारे पास 5 लीटर है, ठीक है, तो इससे रिएक्ट करने के लिए जो हमारे पास हम कह रहे हैं यहाँ पर ना, इसके 2 लीटर से इसका 1 लीटर, तो ऑक्सीजन तो क्या है, सिर्फ क्या है 2.5 लगेगी यहाँ पर ना, 2.5 लगेगी, ऑक्सीजन तो कितनी लगेगी यहाँ पर 2.5 लीटर, बाकी तो बच जाएगी, ठीक है। क्या होगा फिर ये, if 10 volume of dihydrogen gas reacts with 5 volume of dioxygen, if 10 volume dihydrogen, मैंने उल्टा लिखा हुआ ये, अगर ये भी रिएक्शन है, ठीक है प्लीज, पहले क्या है, इसका हम क्या है यहाँ पर, ये 10 लीटर इसका है और 5 लीटर इसका है, राइट। तो 5 लीटर से अब देख लीजिए जितने लीटर ये हमारे पास क्या है, अगर ये 2 लीटर है, ये 2 लीटर बन रहा है, अगर इसका 1 ले लेंगे तो ठीक है, ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये भी आपका 1 ही बनेगा, यहाँ पर आधा हो जाएगा ये। तो अगर ये पोजीशन है तो ये 5 लीटर बनेगा यहाँ पर ना, वाटर क्या 5 लीटर बनेगा। अगर पोजीशन क्या रिवर्स कर दें, फर्स्ट प्रॉब्लम उल्टा कर देना, ये 10 लीटर है और ये 5 लीटर है,
ऑक्सीजन। डाइहाइड्रोजन क्या है वो 10 वॉल्यूम्स और 10 लीटर, तो ये भी यहां पर 10 लीटर बनेगा ना, ठीक है। क्योंकि जितना ये है लिक्विड, जितना ये यहाँ पर हाइड्रोजन है वॉल्यूम के टर्म में, उतना ही वाटर बनता है, राइट। और सिंपल बात क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन से ही आधा डबल बनता है। ऑक्सीजन से क्या है, ऑक्सीजन में क्या है, ये यहां पर लिया है 10 लीटर, लेकिन उसमें खास बात क्या है कि ये पूरा 10 लीटर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर 5 लीटर ही है। हाइड्रोजन है क्या है 5 लीटर है, तो 5 लीटर बन जाएगा, बाकी ये 7.5 जो यहाँ पर क्या है अनरिएक्टेड बच जाता है। अगर ये क्या है हाइड्रोजन एक्सेस में हो यहाँ पर, प्लीज थर्ड केस में क्या है भाई, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है वो एक्सेस में है, एक्सेस में है, और 10 लीटर यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये जो वाटर है डबल बनता है, तो ये 20 लीटर बन जाएगा। थर्ड सिनेरियो क्या था भाई, यहाँ पर हम लगातार इसमें क्या है हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने क्या है एक बार ये कम किया, फिर उतना ही रखा है यहाँ पर ये। तो इस तरह से हम बहुत सी स्टोइकियोमेट्री की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, और ये किसी भी कंपटीशन के एंगल से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स, नमस्कार।